Now the next part is question number 6 now. Question is, find the value of C1 and C2 such that this function is analytic and also find its derivative. So first of all, we need to find u and v. U is the real part of f of z and v is the imaginary part of f of z. So this part is your u and this part is your v. So u is equal to x square plus c1 y square minus 2xy, and v is equal to imaginary part is c2 x square minus y square plus 2xy. Now the question is, you need to find c1 and c2 so that the function is analytic, and the primary condition of analytic function should be the function should satisfy the CR equation. So first find del u by del x, it is equal to 2x minus 2y. Then find del u by del y, it is equal to 2c1y minus 2x. Then from here find del v by del x, this is equal to 2c2x plus 2y, and del v by del y, it is equal to minus 2y plus 2x. Now for function to be analytic, the CR equation, that is del u by del x, should be equal to del v by del y, and del u by del y should be equal to minus of del v by del x. So if I will put this equation, 2x minus 2y should be equal to this equation. ये तो already equally है आपके पास 2x minus 2y. There is no problem here. We are not able to find here C1 and C2 because this equation doesn't have C1 and C2. For del u by del y, this is 2c1y minus 2x and is equal to minus del v by del x. This is minus 2c2x minus 2y. If these two be equal, then the coefficient of x and coefficient of y should be same. So just comparing the coefficients, here the coefficient of y is 2c1 and coefficient of y is here minus 2. So from here you will get c1 is equal to minus 1. Similarly, for the coefficient of x, here is minus 2 and the coefficient of x here is minus 2c2. So from here you will get c2 is equal to 1. So these are the values for C1 and C2 for which the given function is analytic. Now you need to find f prime z. You know f prime z, it is del u by del x plus iota del v by del x. Just substitute the value here, you will get f prime z. And also you have to put C1 and C2 in del u by del x and del v by del x. You will get the answer. Now next part. Next part is find Cauchy-Riemann equation in polar form. So we have to derive the Cauchy-Riemann equation in polar form. In Cartesian form we have already drawn del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x. Now we need to derive in polar form. So the polar form, what we will do here, just a function f of z is u plus iota v. To convert into polar form, just write z in polar form. So z is equal to कितना? Z is a complex number. In Euler form it is written as r e raised to power I theta. I is modulus of z and theta is the argument of z. Just substitute the value here. So you will get f of r e raised to power I theta and you will get here u plus iota v. Now differentiate this equation with respect to r partially. First I am differentiating this equation with respect to r partially. So you will get here f prime r e raised to power I theta into e raised to power I theta. This is equal to del u by del r plus iota del v by del r. Right? This is your first equation. Now again differentiate this equation with respect to theta partially. This is f prime r e raised to power I theta into r I e raised to power I theta. This is del u by del theta plus iota del v by del theta.
Now next step is the value of this part is this value. Now in the second equation, just look here, this part is same as this part and its value is this. Then substitute this value here, so you will get here Ri, this is del u by, this is R, sorry, del u by del R plus iota del v by del R, and the right hand side part remains same, that is del u by del theta plus iota del v by del theta. अब यहाँ पे इस पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दिस पार्ट इज आर आई डेल यू बाय डेल आर माइनस आर डेल यू बाय डेल वी बाय डेल आर, दिस इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आएटा डेल वी बाय डेल थीटा. So this is a complex number, this is a complex number. When two complex number are equal, real part is equal to real part and imaginary part equal to imaginary part. So here real part is this function, this is minus r del v by del r, and here real part is del u by del theta, and here the imaginary part is r del u by del r, and in the right hand side the imaginary part is del v by del theta. So these are the CR equation in polar form. Next part is prove that an analytic function consists of two orthogonal functions. What is the orthogonal functions? The functions which are perpendicular. Suppose one curve is this, another curve is this. This is the point of intersection. If I need to find the angle between these two, just I have to draw one tangent here, If the angle between these two tangents are 90 degree, then we will say the curves are orthogonal, right? And if suppose you are given the slope of this equation is m1 at this point and the slope of second equation is m2, if m1 into m2 is equal to -1, then you can say the angle between these two curves is 90 degree, so curves are orthogonal, right? So we have to prove, हमें क्या prove करना है कि an analytic function consists of two orthogonal functions. So first of all, consider an analytic function f of z. It is equal to u plus iota v. U is a function of x and y and v is a function of x and y. So we can say this f of z will consist of two curves. One curve is u of something is equal to 0 or some constant c, and another curve v of xy is equal to some constant or c. So let the two curve you can consider here, u xy is equal to some constant or 0 and vxy is equal to some constant or 0. So these are the two curves which is one part is real, that is u, another part is imaginary, that is v. It consists of f of z. अब हमें इस कर्व का निकालना है स्लोप. तो कोई भी कर्व आपको दे रखी है अगर एक्सप्लिसिट फॉर्म में x और y की फॉर्म में, तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव dy by dx कितना होता है. इसको मैं नाम दे रहा हूँ m1 का. ये होता है माइनस del u by del x अपॉन del u by del y. सिमिलरली अगर आपको इस कर्व का निकालना है तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे dy by dx, इसको हमने बोला m of 2, दैट इज स्लोप. यहाँ पे v कर्व है, क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला माइनस del v by del x अपॉन del v by del y. तो हमने पहले क्या किया, इन दोनों कर्व का स्लोप निकाल लिया. अब मैं इन दोनों स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ m1 इंटू m2. अगर ये इक्वल टू -1 आ गया तो कर्व्स क्या बन जाएंगे, ऑर्थोगोनल. तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों का आपस में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. ये हो गया आपका del u by del x अपॉन del u by del y मल्टीप्लाई बाय del v by del x अपॉन del v by del y. ये दोनों का काम. अब आप क्या करोगे, बिकॉज इट इज गिवन द फंक्शन इज एनालिटिक and when the function is analytic, CR equation must satisfy. So CR equation is
del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x. This is the CR equation. तो आप क्या करो, यहाँ तो इस v वाले पार्ट को u में कन्वर्ट कर लो या u वाले पार्ट को v में कन्वर्ट कर लो, किसी एक को कन्वर्ट करना है आपने. तो मैं v वाले पार्ट को u में कन्वर्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन. तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, del u बाय del x अपॉन del u बाय del y मल्टीप्लाई बाय del v बाय del x किसके इक्वल है, माइनस del u बाय del y के. एंड del v बाय del y किसके इक्वल है, del u बाय del x. These two factors are cancel out. You will get here -1. Therefore, the curves are orthogonal. The curves are orthogonal. Next, अब आता है हार्मोनिक फंक्शन. What is a harmonic function? Suppose एक फंक्शन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे. सपोज फंक्शन लिया मैंने, u ले लेते हैं, चलो फंक्शन लिया मैंने u(x,y). अगर मैं u का करूँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक 2 टाइम्स, तो कितना होगा यहाँ पे, del स्क्वायर u बाय del x स्क्वायर. अगर हम u का करें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स, तो ये कितना होगा, del स्क्वायर u बाय del y स्क्वायर. और दोनों को आपस में ऐड कर दें और रिजल्ट क्या आ जाए मेरा, 0 आ जाए. तो इसको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन. और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, लाप्लास इक्वेशन. सो हार्मोनिक की डेफिनेशन क्या हो गई, अ फंक्शन विच सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड ए हार्मोनिक फंक्शन. ये तो आपका 2D में है, हो सकता है यहाँ पे x, y और z आपका 3D में आ जाए. तो आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू z और तीनों को आपस में ऐड करोगे. अगर 0 आ गया तो उसको लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं इन. ओके, तो ये आपका आ गया del स्क्वायर u बाय del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर u बाय del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इज द लाप्लास इक्वेशन. अब आता है आपके पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स. हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं, अगर सपोज 2 फंक्शन है, एक फंक्शन u है और एक फंक्शन आपका v है. अगर u सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन को, तो u क्या हो गया आपका, हार्मोनिक फंक्शन. सिमिलरली इफ v सेटिस्फाइंग द लाप्लास इक्वेशन देन v इज आल्सो ए हार्मोनिक फंक्शन. तो दोनों फंक्शन जो है वो क्या है, मेरे हार्मोनिक फंक्शन है, बिकॉज बोथ दिस फंक्शन सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन. एंड वन मोर कंडीशन इज देयर, if u and v satisfy the CR equation as well. CR equation क्या होती है आपके पास, del u by del x, del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x. और u और v CR को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो u और v CR को सेटिस्फाई कर रहे हैं और साथ साथ लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम u और v को बोलेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स. अगर u और v सिर्फ लाप्लास को सेटिस्फाई करें और इसको सेटिस्फाई ना करें, तो सिर्फ इसको बोलेंगे हम हार्मोनिक फंक्शन, नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स. हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होने के लिए CR इक्वेशन का भी सेटिस्फाई होना कंपलसरी है. तो ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं. ओके, क्वेश्चन ये है आपके पास, प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 हार्मोनिक फंक्शंस. आपको प्रूव करना है एनालिटिक फंक्शन जो है वो कंसिस्ट है 2 हार्मोनिक फंक्शन. तो हम एज्यूम करते हैं, कंसिडर एन एनालिटिक फंक्शन f of z is equal to u plus iota v. Because it is an analytic function, तो CR equation must satisfy. What is CR equation? Del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x. Because it is a analytic function, तो CR equation must satisfy. अब मैं इस इक्वेशन को कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो कितना होगा यहाँ पे, del स्क्वायर u del x स्क्वायर इज इक्वल टू del स्क्वायर v del x del y. अब इसको कर रहा हूँ डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y. दिस इज del स्क्वायर u del y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस del स्क्वायर v, दिस इज del y del x. अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को आपस में ऐड कर दूँ तो कितना आएगा यहाँ पे, del स्क्वायर u del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर u del y स्क्वायर. मैंने दोनों लेफ्ट हैंड साइड को आपस में ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड पे देखो ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट नेगेटिव है आपके पास. ये दोनों आपस में कैंसिल हो, कितना हो गया, 0. तो देयरफॉर ये क्या बन गया आपके पास, लाप्लास इक्वेशन. और u क्या हो गया आपका, हार्मोनिक फंक्शन. सिमिलरली आप v को भी हार्मोनिक प्रूव कर सकते हो. आपने जिस इक्वेशन को किया है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका कर दो विद रिस्पेक्ट टू y
और इसका कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और दोनों को आपस में ऐड कर दो तो आपके पास वी भी क्या आ जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। तो या तो आप प्रूव करके दिखा दो, ये लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव वी इज ए हार्मोनिक फंक्शन, राइट। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एफ जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मॉडुलस ऑफ एफ प्राइम जेड होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को देखो, यहाँ पे है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई है, सॉरी यहाँ पे वाई, और यहाँ पे है मॉड ऑफ एफ जेड स्क्वायर। सबसे पहले आपको बात करते हैं मॉड ऑफ एफ जेड की। आपको पता है मॉड एफ ऑफ जेड क्या होता है, एफ ऑफ जेड होता है आपके पास u प्लस आइटा वी। अगर हम इसका ले लें मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर द रूट, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वेयरिंग कर लो, तो मॉड ऑफ एफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसको मैं एक न्यू नेम दे रहा हूँ 5। तो अब शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपके पास। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपके पास, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है आपके पास 5। अब 5 को आप अंदर ऑपरेट कर दो, ये वाला पार्ट कितना हो गया आपके पास, डेल स्क्वायर 5 बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर 5 बाय डेल वाई स्क्वायर। 5 को मैं अंदर ले गया यहाँ पे। अब आपके पास 5 कितना गिवन है, 5 गिवन है आपके पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप पहले निकालेंगे डेल स्क्वायर 5 बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज 2u डेल यू बाय डेल एक्स प्लस 2v, दिस इज डेल v बाय डेल एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल स्क्वायर 5 बाय डेल एक्स स्क्वायर, 2 इज कॉमन, यहाँ पे लगाओ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव डेल यू बाय डेल एक्स, ये क्या होगा डेल यू बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे लगाओ प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये हो गया आपका होल स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन फाइंड डेल स्क्वायर 5 बाय डेल वाई स्क्वायर, बिकॉज फंक्शन बिल्कुल सिमेट्रिक है तो यहाँ इसकी जगह सिंपल वाई हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर 5 बाय डेल वाई स्क्वायर सिमिलरली टू यू डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई होल स्क्वायर प्लस वी डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल वाई होल स्क्वायर। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों फंक्शंस को आपस में ऐड करना है। अब इन फंक्शन को ऐड कर दो, एडिंग दीज टू डेल स्क्वायर 5 बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर 5 बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कॉमन आ गया। अब मैं ऐड कर रहा हूँ, पहले इस फंक्शन को मैंने ऐड किया, इस फंक्शन को, यहाँ पे आपका u कॉमन है, ये पार्ट कितना रह जाएगा अंदर, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस, अब इस फंक्शन को आपस में ऐड कर दो, यहाँ से आपका v कॉमन है, ये हो गया आपका डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल वाई स्क्वायर। बाकी पार्ट को लिख दो एज इट इज़, यहाँ लिख रहा हूँ प्लस, ये कितना है आपके पास डेल यू बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल वाई होल स्क्वायर। ये पार्ट आ गया। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन में गिवन था एफ ऑफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन बिकॉज एफ ऑफ जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन, देयरफॉर यू एंड वी क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, विच सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन, दैट इज डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सिमिलरली फॉर वी।
also CR equation must satisfy, that is del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x। तो इन दोनों कंडीशंस का यहाँ पे यूज़ करते हैं हम। तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड पे है डेल स्क्वायर फाइव बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर फाइव बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब ये क्या लाप्लेस की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज u जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है, तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। तो ये पोर्शन 0 हो गया। सिमिलरली v भी आपका हार्मोनिक है, तो ये पोर्शन भी कितना हो गया आपका 0, प्लस डेल यू बाय डेल एक्स को आपने अभी यहाँ पे सेम रखा। सिमिलरली आपने डेल वी बाय डेल एक्स को आपने सेम रखा। अब जो पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू y है उसको आप चेंज कर दो x की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन। तो डेल यू बाय डेल वाई ये रहा, ये किसके इक्वल है, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। डाल दो यहाँ पे माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, क्योंकि होल स्क्वायर में तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका डेल वी बाय डेल एक्स होल स्क्वायर। सिमिलरली डेल वी बाय डेल वाई ये किसके इक्वल है, डेल यू बाय डेल एक्स के। इस वैल्यू को यहाँ डाल दो, ये हो गया प्लस डेल यू बाय डेल एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में ऐड होकर ट्वाइस हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड होकर ट्वाइस हो जाएगा। तो 2 कॉमन निकाल लो, बाहर कितना हो गया 4 डेल यू बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स होल स्क्वायर। इतना पार्ट आ गया आपके पास। अब आपको लेकिन प्रूव करना है इट इज़ इक्वल टू 4 मॉडुलस ऑफ एफ प्राइम जेड होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि एफ प्राइम जेड क्या होता है, एफ प्राइम जेड जो होता है वो क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी बाय डेल एक्स। अगर हम इसका मॉडुलस ले लें तो ये कितना हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा आपका डेल यू बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल एक्स होल स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू क्या है, सेम यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, तो इस पार्ट को यहाँ रिप्लेस कर दो। तो ये कितना आ गया आपका 4 एफ प्राइम जेड स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मेरा पार्ट प्रूव हो गया। तो बाकी पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।